Class. Today I am going to explain the fact of electronegativity of central atom on bond angle of similar molecule. It can be explained in three ways. First, by considering the hydrides of group number 16 such as water, hydrogen sulfide, H2SE and H2TE. These are the hydrides of group number 16: oxygen hydride, sulfur, selenium and tellurium hydride. Now in these cases the bond angle is found to be 104.5 degree in water molecule, 92.5 in H2S, 91.0 degree in H2SE, and it comes to be 90.5 degree in H2TE. Now it was clear from this observation that bond angle decreases as we move from top to bottom from oxygen to tellurium. It means as we move from oxygen to tellurium, it is clear that electronegativity of the central atom goes on decreasing. अब यहाँ पर En वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे इस केस में? डिक्रीज. जब ये En वैल्यूज़ डिक्रीज होंगी तो उस केस में जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, नाउ एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Every atom consists of lone pair of electron. Now every atom have to face some lone pair repulsions. As a result, the bond angle will goes on decreasing or increasing. So in first case water, it is written as HOH, and these are the two lone pair of electron present on oxygen atom. Now the size of oxygen atom is small. It is a small size element, and out of these four, it is highly electronegative in nature. So these lone pair of electron causes repulsion, and this distance is smaller. Now smaller the distance, it means these bond pair are closer to each other. अब जितना डिस्टेंस कम होगा ये, क्योंकि साइज स्मॉल है तो डिस्टेंस कम होगा, तो बॉन्ड पेयर क्या फेस करेंगे? नाउ दीज बॉन्ड पेयर्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर. जितना ये एटम क्लोज होंगे, बॉन्ड पेयर क्लोज होंगे, उस केस में लोन पेयर क्या कोज करेंगे? लोन पेयर विल कोजेज लार्जर रिपल्शन. तो वहाँ पर रिपल्शन कैसे हो जाएंगी? लार्ज. इसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स थे, ये बॉन्ड पेयर यहाँ से सेपरेट होकर दूर हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज. सेकंड केस है इन केस ऑफ H2S. सेंट्रल एटम का साइज अब क्या हो चुका है? इंक्रीज, क्योंकि जो सल्फर है वो ओ के कंपेरिजन में साइज कैसा पोजेस करता है? इट पोजेस लार्ज साइज. और जो En वैल्यू है वो भी कैसी होगी? लेस. अब जो ये डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस क्या हो चुका है? इंक्रीज. नाउ इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन विद सल्फर इज लार्ज, देयरफॉर इट पोजेस लार्ज डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे, नाउ बॉन्ड पेयर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर दे विल फेस लेस स्मॉलर रिपल्शन. तो रिपल्शन वहाँ पर क्या होंगी? कम होंगी. इट मीन्स बॉन्ड पेयर अब ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, बॉन्ड पेयर रिमेन्स क्लोजर, देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल डिक्रीजेज. फर्दर विद इंक्रीज इन साइज बॉन्ड एंगल फर्दर गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो जहाँ पर जो हमारे पास लास्ट मॉलिक्यूल है H2TE, उस केस में बॉन्ड पेयर ज़्यादा दूर होंगे, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन कोज होंगी, तो बॉन्ड एंगल की वजह से स्मॉल आ जाएगी. नेक्स्ट है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 NH3, PH3, ASH3 and BiH3. Bond angle in case of ammonia is 107.5 degree. It is 93.5, 91.5 and 91.2. In this case also the En value of central atom decreases. अब जो central atom है वहाँ पर En values क्या हो रही है? Decrease. Now size goes on increasing, therefore bond angles also decreases. It will follow the same concept as hydride of group number 16. Now last is, if we have taken halides of phosphorus, trihalide of phosphorus such as PF3, now PCl3, PBr3 and Pi3. अब जो सेंट्रल एटम है उसका साइज सेम रहेगा, सेंट्रल एटम साइज रिमेन सेम, बट द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द En वैल्यू डिक्रीजेज. नाउ साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. जब साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में यहाँ पर En वैल्यूज़ क्या हो रही है? सराउंडिंग एटम्स की डिक्रीज. एज En वैल्यू डिक्रीजेज, नाउ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, देयरफॉर in this case reverse changes takes place, therefore in this case bond angle goes on increasing. तो bond angle यहाँ पर क्या हो जाएगा? increase. It is 97 degree in PF3, 100 degree in PCl3
it is 101.5 in PbR3 and is 102 degree in Pi3. In this way we can study the effect of electronegative atom of central atom as well as the surrounding atoms. Now next topic is how can we find out hybridization of central atom and shapes of simple molecules by using this formula. This X stands for hybrid orbitals number. ठीक है, what does this X indicate? This X indicate number of hybrid orbitals. How can we calculate it? Half into number of valence electrons of central atom. जो भी हमारा central atom होगा उसके valence electrons को put करेंगे, then plus number of monovalent means जिस एटम की वैलेंसी कितनी होगी 1. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच सराउंड द सेंट्रल एटम. जो मोनोवेलेंट स्पेसेस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगी उसका नंबर ऐड करेंगे, माइनस चार्ज ऑन दी कैटायन. अगर हमारे पास गिवन स्पेसेस पॉलीएटॉमिक कैटायन है तो उस केस में जितना भी कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ से माइनस करेंगे, प्लस चार्ज ऑन द एनायन ऑफ द गिवन स्पेसेस इफ़ इट इज़ पॉलीएटॉमिक एनायन. अगर हमारे पास गिवन स्पेसेस एनायन है जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट X इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस चार्ज इक्वल टू कैटायन प्लस चार्ज इक्वल टू एनायन. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ hybrid orbitals. One more point is if the surrounding atom is divalent. अगर जो surrounding atom है वो कैसा है divalent, तो उस केस में यहाँ पर जो Ma की वैल्यू है it is written as 0. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे. क्लियर है. सपोज हमारे पास आयन है कार्बोनेट आयन. सपोज वी हैव गिवन कार्बोनेट आयन, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन केस ऑफ कार्बोनेट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ इंटू सेंट्रल एटम इज नाउ कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है डाइवेलेंट, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, माइनस कैटायन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नो, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, प्लस चार्ज एनायन नेगेटिव चार्ज कितना नेगेटिव 2, तो प्लस 2 करेंगे. 4 + 2 8 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. इट मीन्स इस केस में यहाँ पर X की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3. देयरफॉर इट पोजेस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हैंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. 1 S का होगा, बाकी 2 किसके होंगे P के 2. तो उस केस में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp2. देयरफॉर इट पोजेस ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री. क्लियर. नेक्स्ट इज सपोज वी हैव गिवन IF5. ठीक है, हमारे पास एटम कौन सा है IF5. इसकी हेल्प से निकालने में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में सेंट्रल एटम जो आयोडीन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन है ये, इट मीन्स यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा 7, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं यहाँ पर 5 + 5. कोई चार्ज है कैटायन का नो, तो यहाँ पर 0. कोई नेगेटिव चार्ज है नो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0. तो वैल्यू आ जाएगी 7 + 5 12 बाई 2. इट कम्स आउट टू बी 6. इसका मतलब इस केस में हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. देयरफॉर इट पोजेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, तो हमें स्टार्ट करनी है S से, फिर P और फिर लास्ट में हम जाएंगे D तक. हमें 6 ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, तो फर्स्ट आएगा S, देन P के कितने आ जाएंगे 3 + 1 कितने हो चुके हैं 4 ऑर्बिटल्स. अब नेक्स्ट बच गया D, तो D के हम कितने यहाँ पर यूज़ करेंगे 2. देयरफॉर इट विल पोजेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d2. क्लियर. अब यहाँ पर ज्योमेट्री कैसे आ जाएगी इस केस में? नाउ इट विल पोजेस ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर पिरामिडल. यहाँ पर ज्योमेट्री कैसे आ जाएगी स्क्वायर पिरामिडल. वाई स्क्वायर पिरामिडल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे. तो लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ना होकर कैसे आ जाएगी स्क्वायर पिरामिडल. एंड इट कैन बी शोन लाइक दिस. सेंटर में हमारे पास आएगा आयोडीन, 5 कॉर्नर्स पे 5 फ्लोरीन और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा लोन पेयर. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिडल. सो योर होमवर्क इज table is given on page number 52. After topic table is 4.7. Clear? So you have to do all the hybridization of these molecules or ions
फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू पॉइंट नंबर 18 दैट इज CH3 नेगेटिव, यहाँ तक कार्ब एनायन तक कंप्लीट सबकी हाइब्रिडाइजेशन फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट केयरफुली।